Good morning, Yes. all. Good morning, sir. Sir, we will use mixed language, Hindi and English. And if friends, if you want to ask any question in Marathi, you can please ask in Marathi also. He can speak both three languages, Hindi, Marathi, English. Yes, sir. Please proceed. Yeah, ma'am. Okay, friends. Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning, sir. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Yeah. Good morning, sir. Okay. I think your FDP is going well, and how many days you are going to means continue this FDP? Sir, it has started on the Tuesday 17th, and it will end on 30th. Okay. Okay. So I think it's a 15th or 16th day. No, no, sir. 17th को शुरू हुआ Okay, है. 17th. अच्छा, Yeah, अच्छा, yeah. अच्छा. Today is the fourth day. Fourth day. Okay. तो आई थिंक धार्मिक मैम ने आपका गूगल फॉर्म्स या गूगल स्लाइड इंट्रोडक्शन लिया मैम. सर गूगल डॉक्स और स्लाइड का इंट्रोडक्शन हो चुका है, बेसिक वाला. एंड गूगल फॉर्म का आज मैंने उनको बेसिक दिया है. यू कैन मूव टू बेसिक एज वेल एज एडवांस पार्ट. ओके मैम. ओके. So now I'm sharing my screen. Is it visible? Yes, sir, it is visible. Sir, you just scroll that WebEx box towards bottom, so that screen will be clearly visible. Now it's fine, I think. Yes, sir. Okay, friends. So now the means in ICT, this is very important lecture regarding your means communications to your students via ICT tools. So and it's the session is very interactive and very interesting and very beneficial as far as the teacher fraternity is concerned, but also this session is very important regarding our students also, because if we are teaching online or if we are conducting any lecture online, so if the lecture is interesting or very interactive with students, then students also get interested. Otherwise they can mute their microphone and they are just sitting or they are just seeing how you talk or how you means scroll your slides. So when we means I am give you guarantee that after finishing this lecture you get the idea or you get some type of the skills that you are interacting with your students definitely. So we start with the Google Apps. So what is mean by Google Apps? So Google Apps means what? Some years before that Google created their own email, that is Gmail, and this Gmail is only not limited only for the reading our emails or just going through the inboxes or only for sending the emails, but this email client, that is Gmail, which has become one of the top email provider services around the world, and it only gives us the private users but also for education institutions and business also. And this Gmail account is come with lot of functionalities like that. It is much more than the Gmail, but this email service
if you have one, make sure to take advantage of its full potential. So ये हमें क्या क्या देता है, मीन्स ये हमें सिर्फ ओनली ईमेल नहीं देता, इसके साथ ये हमें गूगल ड्राइव प्रोवाइड करता है, ये गूगल डॉक्स प्रोवाइड करता है, गूगल शीट प्रोवाइड करता है. So first of all, we are begin with this Google Drive. What this gives us? So Google Drive is a cloud storage and file backup system which provides you with a 15 gigabyte of free space. यानी हमें ये 15 gigabyte का free space provide करता है जिसमें हम कुछ भी store कर सकते हैं. Like we can store our photos, videos and so on. And this with 50 gigabytes is a lot of space. But if you ever feel it of you can always buy some more space from the Google within Drive, and you can also create all kinds of documents with Google on web-based office suite. तो हमें अगर 15 गीगाबाइट की स्पेस भी अगर इनफ नहीं हो रही है तो ये 1 TB की स्पेस हमें प्रोवाइड करता है. और वो 1 TB की स्पेस कब प्रोवाइड करता है? जब हम हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ जो हमारा लॉगिन आईडी होता है या जो हमारा डोमेन नेम होता है, उस डोमेन नेम के साथ हम लॉगिन करते हैं, तो हम गूगल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं. और वो गूगल को रिक्वेस्ट करने के बाद हमें वो 1 TB तक की स्पेस प्रोवाइड करता है. ओके, so after that we are moving forward to this blue symbol, that is Google Docs. And this is very simple but a powerful word processor. You can write a text document and use Google search to find relevant information for the topic you are working in without leaving this document. So this is very important. Advantage of this Google document is what? It is similar to the Word document or Word, that is a Microsoft Word. But difference ये है कि हम इसे अगर हम सेव नहीं भी करते हैं तब भी ये ऑटोमेटिकली गूगल अपने आप इसे सेव कर लेता है. और साइमल्टेनियसली हम हमारा ये डॉक्यूमेंट जो है इसे उसी डॉक्यूमेंट में रहते हुए हम एक्स्ट्रा सर्च या हमारे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सर्च कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि हमें टैब चेंज करना है या और कुछ करना है. हम विद इन दिस गूगल डॉक विदाउट चेंजिंग एनी टैब हमें वहाँ हम सर्च भी कर सकते हैं. और ये गूगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे कब सेव करना है, नहीं करना है. हमने जैसे डॉक्यूमेंट जिस पोजीशन में उसे लीव कर दिया है, जिस पोजीशन में हमने उसे छोड़ दिया है, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम हम उसी पोजीशन से या वहीं से उसे शुरुआत भी कर सकते हैं. और ऐसा ही नहीं कि हमें इसे मीन्स कहीं एक फोल्डर में सेव करना है या कहीं और करना है करके. हमारे पास ऑप्शन होते हैं और अगर हमने उसे सेव भी नहीं किया है तब भी गूगल अपने आप उसे ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है. और इट इज़ नॉट मच इंडिपेंडेंट कि भाई मैंने ये लैपटॉप में इसे काम किया है तो यही लैपटॉप में मुझे यूज़ करना पड़ेगा, या मैंने कॉलेज का कंप्यूटर में कोई काम किया है या कॉलेज के कंप्यूटर में मैंने कोई डेटा सेव करके रखा है या कोई फाइल है अगर है या कोई डॉक्यूमेंट मैंने बनाया गूगल डॉक्स तो मुझे वहीं से ओपन करना पड़ेगा. इट इज़ नॉट मच इंडिपेंडेंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट. मीन्स ऐसे ही नहीं, गूगल डॉक्स ही, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, यहाँ पे जितने ये ऐप्स गूगल ने प्रोवाइड किए गए हैं ये सब मशीन इंडिपेंडेंट है. हम कहीं भी इसे ओपन कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. नाउ देयर इज मूव ऑन टू द अनदर एप्लीकेशन, दैट इज गूगल शीट. दिस इज इन द ग्रीन कलर, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है हमें. So this Google Sheet is a handy spreadsheet program to organize your data and work with tons of formulas for your calculations as you work move in Microsoft Excel. Means जैसे हम Microsoft Excel में काम करते हैं उसी तरह का है ये. After that, next is a Google Slides. So the suite includes this Google Slide also to create a stunning presentations like this. या इसी तरीके के हम presentations बना सकते हैं. Okay, and we can also using the means this is similar to the Microsoft PowerPoint presentation. We can use the Microsoft PowerPoint presentation slide in the Google Slide also. ऐसा नहीं है कि भाई हमने बाहर में कोई PPT बनाई है Microsoft में, Microsoft PowerPoint में, और उस PPT नहीं कर सकते. हम यहाँ Google Slide में भी उसे ओपन कर सकते हैं. Google Slide ने या Google ने हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड की है जिसकी मदद से हम वो स्लाइड यहाँ ओपन कर सकते हैं. ओके, इन फैक्ट डॉक शीट एंड स्लाइड्स कैन आल्सो बी इजीली कन्वर्टेड टू एनी स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट इन दिस विद द हेल्प ऑफ दिस गूगल स्लाइड्स. ओके, आफ्टर दैट ये ब्लू कलर का सिंबल तो अभी आपको सभी को पता होगा ये ब्लू कलर का सिंबल क्या है. ये ब्लू
कलर का सिंबल हमने कोरोना या कोविड-19 सिचुएशन में 2 या 2.5 साल हमने इसे यूज किया है फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशंस. Okay, so I think everyone is aware regarding this Google form. So with the different types of questions to make a surveys or gather the information from your friends, students or your customers and analyze the submitted data in the associated spreadsheet. तो ये इसका हम इसके ऊपर अभी फोकस करने वाले हैं. सबसे पहले हम गूगल फॉर्म ही देखने वाले हैं. विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे. आफ्टर दैट गूगल ऑल्सो प्रोवाइड दिस इज अ गूगल कैलेंडर एंड दिस गूगल कैलेंडर is means हमें इसे प्रैक्टिकल कैलेंडर भी बोल सकते हैं. In which we can organize all our meetings, lectures or events, establishing notifications and inviting our contacts. You will never forget an appointment again when you tag your appointment or you mention your appointment in this Google Calendar. Okay, after that, this is the Google group. This group is a form of contacts. Use them as a mailing list or as a base for sharing the documents. तो ये गूगल ग्रुप का काम है. उसके बाद हम आते हैं फिर ये जो सिंबल है, ये सिंबल हमें पता है, दिस इज गूगल साइट सिंबल. गूगल साइट मीन्स व्हाट, कि अगर हमें हमारी खुद की वेबसाइट अगर डिजाइन करनी है या बनानी है तो गूगल हमें ये प्रोवाइड करता है. ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है. विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेटफॉर्म वी कैन मेक आवर ओन वेबसाइट. ओके, so this is another or simple and fast way to create a sophisticated web pages with the help of this existing templates. इसमें templates दिए होते हैं. With the help of these templates we can make our websites. Okay, after that now this is the symbol of Hangout. This is called as Hangout and you can communicate in real time with your friends, students or customers through Hangout, either through texting, audio or video calls. तो अभी Hangout यूज हो सकता है लेकिन इतना हम यूज नहीं करते हैं एज कंपेयर टू द व्हाट्सएप. ओके, आफ्टर दैट वी आर गिविंग दिस ऑरेंज कलर सिंबल एंड दिस ऑरेंज कलर सिंबल इज ऑफ ब्लॉगर. तो अगर हमारे एफडीपी में या हमारे अभी जो टीचिंग फैटर्निटी जो ज्वाइंट हुई है इस एफडीपी में, तो उसमें अगर कुछ लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से अगर है, इंग्लिश या मराठी बैकग्राउंड से अगर है, तो वो ब्लॉग्स की मदद से या इस विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉग हम हमारा ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, हमारे सब्जेक्ट का ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं. अगर कोई आर्टिकल या कोई पोएम या कोई कुछ लिखना चाहता है तो वो पोएम डायरेक्टली आप इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉग. अगर आपका ब्लॉग सही में कुछ न्यू थिंग है या नया है तो आपको लोग फॉलो करेंगे. और अगर ब्लॉग एक बार अच्छा चल जाता मीन्स यानी लोगों को अगर पसंद आता है और उसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो अगर अच्छे हैं तो वो ब्लॉग्स के कुछ दिनों के बाद उस ब्लॉग के ऊपर एडवर्टाइज आना चालू होते हैं और उस एडवर्टाइज की मदद से या दैट द एडवर्टाइजमेंट की मदद से हमें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है या फाइनेंशियल मींस मदद भी हो जाती है अगर हमारा ब्लॉग अगर हिट है. इज मींस सिमिलर टू द यूट्यूब चैनल. जैसे हमारा यूट्यूब चैनल जो हमें पे करता है या हमें मीन्स अगर हमारा चैनल बहुत अच्छे तरीके से होता है, 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर अगर हमारा चैनल चला जाता है और हमारे चैनल में बहुत अच्छे कंटेंट्स अगर है तो हमारे सब्सक्राइब अगर 1000 के ऊपर हो जाते हैं तो आफ्टर दैट हमें एडवर्टाइजमेंट उस वीडियोस के ऊपर आना चालू हो जाती है. अगर उस वीडियोस के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आती है तो हमें मीन्स उस एडवर्टाइजमेंट के बदले कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है. ओके, तो दैट्स व्हाई यूट्यूबर्स जो होते हैं वो एक बेसिकली चैनल उसी के लिए क्रिएट करते हैं कि उन्हें फाइनेंशियल मदद हो करके. ओके, नाउ ये सिंबल तो सभी को पता होगा बिकॉज हमने ये सिंबल ज़्यादा यूज किया है. दिस इज अ गूगल क्लासरूम सिंबल. सो गूगल क्लासरूम के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आई थिंक सभी ने इसे यूज किया है इन दिस लास्ट 2 years. Okay, so we are from the means teaching fraternity and so the Google apps. We can also take the advantages of Google Classroom, a friendly e-learning site where teachers can interact with students, setting and making assignments, and integrating resources, interactive contents, and many more things. Okay, we are also conducting the online examination with the help of this Google Classroom. And उसके बाद फिर Google Plus है और उसके बाद YouTube है. These are the two another app that is not seen in this
presentation. So as far as that we are belonging to the teaching fraternity, so we remember that in addition to the private Google accounts, there is also a free version of Google Apps for education. Education के हिसाब से एक Google Apps और provide करते हैं that any academic institutions can easily request using their own internet domain name and be aware because of this free versions. For education, the drive disk space for each user is unlimited and administrator can create as many as user accounts as they like for all the students and teachers. तो ये सब गूगल एप्स में प्रोवाइड करता है और मैंने जैसे आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि 1 टेराबाइट की ये गूगल स्पेस या ड्राइव स्पेस हमें प्रोवाइड करता है. तो व्हेन जब हम हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो डोमेन नेम है उससे लॉग इन करते हैं. ओके, एंड व्हाई दिस इज मोर मीन्स more feasible और हम ज़्यादा इसे क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट्स one of the most interesting feature of this Google apps is what that these applications run on any device, on any platform or operating system, and this means that whenever you are on, can access your documents or any device and continue your work where you left off in Google Apps. You can easily share your documents, spreadsheets, presentation, etc. with others. And one more important thing is that you can also create all this collaboration with your colleagues or your students. So collaboration means what? कि जैसे भाई मैंने Google Docs दिया है और Google Docs अगर मुझे लगता है कि मैंने एक पेपर राइट किया है, Google Docs का यूज करके मैंने एक रिसर्च पेपर बनाया है. अगर मैंने एक रिसर्च पेपर बनाया है और मुझे लगता है कि मैंने रिसर्च पेपर जो बनाया है तो एट अ टाइम मेरे जो गाइड है उन्होंने भी देखना चाहिए, मेरे जो सुपरवाइजर है उन्होंने भी उसे देखना चाहिए और उन्होंने उसमें कुछ कमेंट्स करनी चाहिए. तो एट अ टाइम जिस टाइम में मैं पेपर बना रहा हूँ रिसर्च पेपर, उसी टाइम में मेरे गाइड या मेरे सुपरवाइजर भी उसे देख सकते हैं और उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं. दिस आर कॉल्ड एज वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट गूगल प्रोवाइड, दैट इज कॉल्ड एज कोलैबोरेशन. मीन्स अगर कोई फिगर है, उस फिगर में अगर कोई प्रॉब्लम अगर है, अगर मैं गूगल डॉक्स में मेरे सपोज मेरा सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है, उस इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग कोई सर्किट डायग्राम अगर है और मैं रिसर्च पेपर बना रहा हूँ, तो मैं उस सर्किट डायग्राम में करेक्शंस के लिए एट अ टाइम मेरे गाइड अपने घर में बैठे हुए अपने लैपटॉप में उसे करेक्ट करेंगे और वो करेक्शन मुझे यहाँ दिखेगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ कोलैबोरेशन. So there are means lot of advantages and lot of important features that Google provide us. There are several ways to access. The easiest way is to open your Gmail account and use the apps icon at the top right corner of the screen. So now, Sir, one question. ma'am. Yes. Matt, sir. हेलो सर. हाँ, yes, yes. सर आपने जैसा अभी बताया गूगल ड्राइव इंस्टीट्यूशनल के थ्रू अगर हम जाते हैं तो 1 TB प्रोवाइड करता है, ठीक है, और वैसा पर्सनली अपने को 15 GB वो फ्री देता है. तो ये जो 1 TB है ये भी फ्री देता है क्या, प्रोवाइड करता है क्या वो? हाँ 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 हाँ. वो इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करता है कि इंस्टीट्यूशन के फैकल्टीज को प्रोवाइड करता है? वो इंस्टीट्यूशंस के फैकल्टी जिन्होंने उसके थ्रू लॉग इन किया हुआ है. अच्छा. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी नागपुर यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेते हैं, .edu अगर है या डॉट हमारे फॉर एग्जांपल YCC का एग्जांपल लेते हैं, YCC.edu अगर है और उससे अगर हम लॉग इन करते हैं और हम उसको रिक्वेस्ट देते हैं कि भाई हमारा ये इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट में जितने फैकल्टीज है उनके फैकल्टीज के लॉगिन में यानी जैसे हर एक का ईमेल अकाउंट होगा या हर एक का लॉगिन नेम होगा, तो हर Yes, एक sir. लॉगिन नेम में 1 TB मिलेगा उन्हें. अच्छा 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 अच्छा. हाँ, इसके लिए चार्जेस नहीं है. और ये पर्सनल भी हम उनका वेब स्पेस ले सकते हैं क्या सर? जैसा 15 GB उन्होंने फ्री देते, पेड वाला भी कुछ रहता है क्या? आप पेड वाले के तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये फ्री जो है तो पक्का है अच्छा. क्योंकि हमने भी हमारे इंस्टीट्यूट में यूज किया गया है. ओके सर. तो यानी जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में 10 फैकल्टीज अगर है और हमने हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू लॉग इन किया और उन्हें रिक्वेस्ट भेजी कि दिस इज आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सो वी रिक्वायर सच ए टाइप ऑफ द फैसिलिटीज, तो वो हर एक लॉग इन को उतनी यानी 10 फैकल्टीज है तो 1 into 10 TB इतना मिल Okay. जाएगा हमें. ओके सर, थैंक यू. Okay, so now we are moving to the important thing, that is Google Forms. और ये Google Forms तो सभी ने देखा होगा, लेकिन some of the teachers जिन्हें इसे नहीं पता, so
मैं थोड़ा फास्ट लेने की कोशिश करूंगा गूगल फॉर्म. So what are the applications of Google Forms? That Google Forms is one of the apps that is provided by the Google. So Google Form हमें क्या provide करता है? First of all, it gives us a survey and feedback. We can provide the assignments. We can evaluate the assignments, program proposal, RSV. We can generate the registration form with the help of Google Form for the conferences, symposia, or workshop. We can use as a reservation. We can conduct the quiz and many more. और क्विज अगर हम बोलते हैं तो क्विज तो मीन्स हमने ऑनलाइन जो एग्जाम्स लिए, इट्स जस्ट लाइक एन क्विज. वो तो सभी को पता है कि हमने एग्जाम्स किस तरह लिए है. तो नाउ हमें अगर गूगल फॉर्म ओपन करना है या गूगल फॉर्म के ऊपर अगर जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो टू द 9 dots. These are the 9 dots, and in this 9 dots we are clicking on this 9 dots. So after clicking on this 9 dot, there is a symbol, that is a triangular symbol, and after clicking on this triangular symbol, this is the interface. ये इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है. एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस ड्राइव, यहाँ पे नंबर ऑफ टैब्स ओपन होता है. दिस आर द न्यू टैब दैट माई ड्राइव. तो ये इंटरफेस ओपन होने के बाद हमें कहाँ पे क्लिक करना है फॉर द गूगल फॉर्म? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन दिस न्यू टैब. इस न्यू टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें इस तरह के ऑप्शंस ओपन होते हैं. दिस ऑप्शंस इज कॉल्ड एज मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज फोल्डर, देन फाइल अपलोड, folder uploaded, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, and finally this blue color symbol, that is the Google Form. So now इस Google Form में जाने के बाद, यहाँ हम क्लिक करने के बाद, so we got such a type of the templates. तो ये blank template है और ये already हमें गाइड करने के लिए, हमें हमारे हिसाब से हमें किस तरह का फॉर्म डिजाइन करना है उसके लिए एक एग्जांपल्स दिए. these are called as the templates. So with the help of this we can make our form, or we can make from the scratch also, that is a blank document. After that हम blank document के ऊपर क्लिक करने के बाद, this is the first of all, this is blue color symbol. After that is the untitled form. हमने यहाँ पे भी untitled form लिखा हुआ है और यहाँ पे भी untitled form है. So therefore this untitled form जहाँ लिखा है, अगर हमने हमारा जो फॉर्म है उस फॉर्म का जो नाम है, हमें यहाँ पे we have to mention the name of this form. For example, if we are conducting the quiz, or if you are registration for our conference or any workshop, so we have to mention the name, that is for registration for the workshop or registration for any conference. So we have to write the title here, and this title is automatically flashing here when we click here. Okay, so there is no need to save, means each time we have to click the save button. After that this is the means form interface इस तरह दिखता है. ये देखते हैं हम और आगे क्या क्या एक्सप्लोर होता है. तो उसके बाद this is the untitled form, the name your form here. Now this symbol is called as the background, means color changing, this is called as the color palette. हम इस तरह से इसे जो ब्लू बैकग्राउंड है, इस ब्लू को दूसरा कलर भी दे सकते हैं और बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल. आफ्टर दैट दिस इज प्रीव्यू. हमने जो फॉर्म बनाया है वो किस तरह दिख रहा है बिफोर सेंडिंग, यानी हम सेंड करने के पहले वो फॉर्म किस तरह दिखता है, वो चेक करने के लिए भी हम इस प्रीव्यू बटन का यूज करते हैं. आफ्टर दैट दिस इज सेटिंग. सेटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो हम आगे देखेंगे. उसके बाद दिस इज द क्वेश्चन. हमें हम ये जो इतना इंटरफेस है, दिस इज फॉर द क्वेश्चन. वी हैव टू राइट द क्वेश्चन हियर. इज इट मल्टीपल चॉइस, इट इज चेक बॉक्स, इट इज एनी अदर टाइप. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं. क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रिक्वायर है और उसका आंसर देने, सपोज हमने यहाँ लिखा नेम, और अगर किसी ने नेम छोड़ दिया और आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट द रिक्वायर्ड ऑप्शन हियर. वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड ऑप्शन. सो देयरफॉर द कैंडिडेट और द स्टूडेंट हैव टू राइट द नेम और हैव टू राइट देयर पर्टिकुलर एंट्री. जो हमने लिखा है यहाँ पे वो उसे अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो दिखाएगा कि आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया है करके, तो उसे वो लिखना पड़ेगा. ओके, so therefore this is the option, that is the require option. Okay, after that there is the number of elements we can add in our questions with the help of this 4 or 5 tabs or buttons. The first is a plus sign. This plus sign is for the adding
द क्वेश्चन मीन्स एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद अगर हमें दूसरा क्वेश्चन लिखना है तो उसके लिए प्लस साइन है. आफ्टर दैट दिस इज टी, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल. So therefore this is called as a header or text. We have to write the means हमने अगर registration form अगर है we have to give the information regarding other questions. और अगर या हमें अगर examination conduct करने हैं और examination conduct करने के लिए we have to put first of all the students requirement. students के जो suppose roll number हमें चाहिए, उसका नाम अगर चाहिए, कौन सा क्लास है, अगर ये चाहिए, ये होने के बाद अगर क्वेश्चंस नेक्स्ट पेज पे चालू होने चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई these are the registration information for the header text. और आफ्टर दैट नेक्स्ट सेक्शन के लिए भी लिख सकते हैं कि these are the quiz or the examination starts. After that we can add the image in questions also. So with the help of this tab or with the help of this button we can add the images. This is the symbol of video. We can add the video in your questions also, and on that video you can ask the questions to our students. Then there is these two lines that indicate that the new section or the new page. We can click on this and we can divide the first section and another section, or we can divide the two sections with the help of this new section or page tab. Okay. After that, there are a lot of options for the questions. That is, it starts from short and long answer. Then there is another option that is we can ask the paragraph type questions, multiple choice questions, check boxes, upload a file with the help of this. Then this is a linear scale, multiple choice grid, text box grid, date, time. So we have a lot of options for means asking the questions to the students or in your form, that is Google form. Then we are moving towards the settings. Settings में क्या होता है? तो settings Excuse में me, sir. yes ma'am. Sir, can you please elaborate on this new section and page? What is the use of this? या मैम, हम जो अभी डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे ना उसमें हम करने वाले ये सब चीजें मैं बताने वाला हूँ, रिपीट करने वाला हूँ. Okay, sir. Yeah. Thank you. After that there is a settings. In settings we have to put the limit to one response. Limit to one response means what? This is very important thing कि हम जब भी हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं तो एग्जामिनेशन में ऐसा बहुत बार होता है कि एक स्टूडेंट 2 या 3 बार या पार्टिसिपेंट्स जो है ये 2 या 3 बार फीडबैक फॉर्म भर देता है, या स्टूडेंट अगर है तो वो 2 या 3 बार एग्जामिनेशन या एग्जाम मीन्स अटेम्प्ट करता है. सपोज उसमें उसको अगर कुछ कम मार्क्स आते हैं या ग्रेड कम आता है तो ग्रेड बढ़ाने की कोशिश करता है और दोबारा पेपर देता है. तो वो लिमिट करने के लिए या वो चीज़ें ऐसी जो चीज़ें होती है उसे अवॉइड करने के लिए हमें यहाँ पे लिमिट टू वन रिस्पॉन्स जो है उसे क्लिक करना पड़ेगा. यानी जो भी पर्सन है या जो भी स्टूडेंट अगर है वो स्टूडेंट वो क्वेश्चन पेपर एक ही बार अटेम्प्ट कर पाएगा, दोबारा वो क्वेश्चन पेपर नहीं दे पाएगा. सो देयरफॉर दिस इज अ लिमिट टू वन रिस्पॉन्स. मीन्स अगर ये फॉर्म एक बार ओपन हुआ है एक ईमेल आईडी से तो दोबारा उस ईमेल आईडी से वो फॉर्म ओपन नहीं होगा. दिस इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लिमिट टू वन रिस्पॉन्स. ओके, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं. जैसे हम अगर क्विज कॉन्टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं या कुछ सपोज बड़ा कोई वर्कशॉप में अगर फीडबैक या तो कोई एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं तो उस एग्जाम में या उस क्विज कॉन्टेस्ट में दिस रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लिमिट टू वन रिस्पॉन्स. इसे ऑन करना जरूरी है. मीन्स इसे हर बार ऑन ही करना है, क्योंकि अगर हम टेस्टिंग के पर्पज से अगर कर रहे हैं या हमारा गूगल फॉर्म हम खुद ही चेक कर रहे हैं तो हम उसे नहीं भी किया लिमिट टू वन रिस्पॉन्स तो चलेगा. लेकिन व्हेन वी हैव टू सेंड दिस फॉर्म टू द स्टूडेंट्स फॉर एज फार एज द एग्जामिनेशन इज कंसर्न तो हमें इसे लिमिट टू वन रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है. After that, there is the options of send and share form, that is email or get link. तो यहाँ पे हमें जो फॉर्म हमने बनाया है या जो फॉर्म हमने डिजाइन किया है उस फॉर्म को हमें अगर सेंड करना है तो सेंड करने के लिए वी हैव द ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट इज ईमेल. लेकिन ईमेल में हमें हमारे हर स्टूडेंट्स के या हमारे हर पार्टिसिपेंट्स के ईमेल यहाँ लिखने पड़ेंगे, उसके बाद हमें उससे सेंड करना पड़ेगा. और अगर हमने हमारे वर्कशॉप या सपोज हमारा कोई स्टूडेंट्स का ग्रुप अगर है, सपोज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फाइनल ईयर कोई भी स्टूडेंट्स अगर है और वो ग्रुप अगर है तो हमने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है लिंक. तो वी कैन कॉपी दिस लिंक. यहाँ पे गेट लिंक ऑप्शन है, हम इस लिंक को कॉपी करते हैं. कॉपी करने के बाद हम वो लिंक
जो लिंक हमने कॉपी की है वो हमारे स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल का जो भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, उसमें हम पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद जो भी स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स वो एग्जाम दे सकेंगे। ओके, सो दिस इज मीन्स एज फार एज हम बहुत बड़ा ग्रुप को अगर जो टैकल कर रहे हैं तो उस टाइम में ये गेट लिंक का ऑप्शन बहुत अच्छा है एज फार एज दिस ईमेल इज कंसर्न। हाँ, एक ही फॉर्म है, मीन्स एक या दो पर्सन को अगर हमें सेंड करना है तो ठीक है, हमें उनके ईमेल्स पता है, so we can write the emails and send that form। but अगर बहुत 10 या 20 अगर ईमेल्स अगर है या 10 या 20 अगर पार्टिसिपेंट्स अगर है तो हमें लिंक ऑप्शन इज गुड। यू कैन कॉपी जस्ट लिंक एंड पेस्ट इन द पर्टिकुलर ग्रुप WhatsApp or Telegram। okay, now this symbol is called as a palette tool, and with the help of this palette tool we can changing the background of the particular form। हम उस फॉर्म का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं जो कलर में हमें चाहिए। these are the options of the color and we can change the background with the help of this, and these are the theme, we can choose the theme। ये तो हमें पता ही है कि हमें थीम चूज कर सकते हैं, और अगर हमें थीम यहाँ की पसंद नहीं आ रही, हमारी खुद की अगर थीम अगर है तो वो भी हम थीम मीन्स हमारे पास अगर कोई फोटोग्राफ है या कॉलेज का लेटर हेड है और कॉलेज के लेटर हेड को वहाँ पेस्ट करना है तो वी कैन ऑल्सो डू दैट विद द हेल्प ऑफ दिस थीम ऑप्शन। ओके, एंड फॉर्म हमने सेंड कर दिया। फॉर्म सेंड करने के बाद उसे स्टूडेंट्स ने या पार्टिसिपेंट ने फिल कर दिया और वो सॉल्व या क्विज जो भी है वो सॉल्व कर लेते। कितने स्टूडेंट ने सॉल्व की, कैसे सॉल्व की, और अगर स्टूडेंट्स को कौन सा क्वेश्चन हार्ड गया, ये जो भी है, तो वी कैन स्टडी विद द हेल्प ऑफ दिस रिस्पॉन्सेज। तो रिस्पॉन्सेज में हमने अगर क्लिक करने के बाद दिस इज ऑप्शन। अब ये रिस्पॉन्सेज के बाजू में ये जो नंबर दिख रहा है, दिस नंबर शोज दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स और हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स दैट fill that form or attempt that quiz। after that this is individual और summary responses। अगर हमें summary देखनी तो हम वो भी देख सकते हैं, या individually देखना है तो वो भी देख सकते हैं। and this is a plus sign, or this is the Excel sheet sign। we can click on this and with the help of this we can create a spreadsheet, and in that spreadsheet we get the detailed information about the student or the participant, which college, phone number, email ID and in many more things, और उसने कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग किया, राइट किया, ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्टिकुलर पर्सन और द स्टूडेंट्स, हमें विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रेडशीट हमें वो पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिल जाती है कि उसने कौन से मीन्स ऑन विच डेट, ऑन विच टाइम he or she has to attend the test। तो सभी चीजें हमें यहाँ पे मिल जाती है। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रेडशीट। So this is very good option that given by the Google form। okay, so now we are going toward the demonstration how the Google form works, and we are just focusing on the Certify-M। with the help of Certify-M how we send the certificates। okay, so I'm just stopping here, going toward the demonstration। okay, so okay, so now 1 minute, हम इस गूगल ड्राइव पे अगर हमें आना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माय ईमेल आईडी interface, that is Gmail, and in this Gmail there is a 9 dots। I'm just clicking on this 9 dots, and after clicking on this 9 dots, look at this is the triangular symbol, that is drive, and I'm just click on this drive, and after clicking on this drive, this is the drive। okay, so हम इस ड्राइव में आने के बाद look at this is the plus sign, that is new, and just click on this new, and after clicking on this new
देयर इज गूगल डॉक, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म। हम इस गूगल फॉर्म में जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। ओके, तो नाउ आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस गूगल फॉर्म, देखिए यहाँ पे वही इंटरफेस आ चुका है। Look at this. This is untitled form, questions, responses, settings. This is untitled form and many more things. Okay. So now इस untitled form को हम यहाँ पे with the help of this form हम इस form को as a quiz form, और quiz form बनाने के बाद हम उसको उसे सर्टिफाई या उसे सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। और जब आप क्विज सॉल्व करेंगे तो क्विज सॉल्व करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे। ओके, तो नाउ the FDP ICT FDP okay. GCHRDC Center. ओके, अब यहाँ पे मैंने ICT FDP 2022-23 दे दिया और यहाँ पे देखिए यहाँ अनटाइटल्ड फॉर्म है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस अनटाइटल्ड फॉर्म, देखिए ये ICT FDP 2022 यहाँ पे आ जाएगा। सो वी डोंट हैव टू मीन्स हमें यहाँ पे इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है या दोबारा सेव करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने क्लिक करके देखिए यहाँ पे नाम आ चुका है। ओके, नाउ अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसे इस फॉर्म को एज अ क्विज फॉर्म बनाना है। तो क्विज फॉर्म बनाना है तो सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे देखते हैं मेक दिस एज अ क्विज। तो लुक एट दिस, असाइन पॉइंट वैल्यूज, सेट आंसर्स एंड ऑटोमेटिक प्रोवाइड द फीडबैक। तो मेक दिस क्विज, तो इसे हम क्विज करते हैं। क्विज करने के बाद यहाँ पे इतने ऑप्शंस ओपन हो गए। We have to release the grades immediately after each submission, यानी जो सबमिशन है या जो भी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया, जैसे उसने सबमिट बटन दबा दिया, फॉर्म सबमिट कर दिया, फॉर्म सबमिट करने के बाद उसके ईमेल आईडी पे वो सर्टिफिकेट्स ऑटोमेटिकली जाना चाहिए। दैट्स वाई हमने इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन जो है वो हमने किया हुआ है। ओके, तो वो कैसा है कि अदरवाइज हमें लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू भी है, लेकिन हमें ये जो इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन है, ये ऑप्शन बहुत अच्छा है कि जैसे ही उसे जो भी ग्रेड्स जो भी मिले हैं वो ग्रेड्स उसे ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे, हमें उसे उस ग्रेड को रिलीज करने की जरूरत नहीं। ओके, तो देयरफॉर जैसे वो सबमिट बटन दबाता है, उसके जो भी मार्क्स है या जो भी मार्क्स उसने उसे मिले हैं वो मार्क्स उसे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ओके, आफ्टर दैट मिस क्वेश्चंस उसे पता होने चाहिए, यस, तो इसलिए हमने उसे ऑन किया। रिस्पोंडेंट कैन सी विच क्वेश्चंस वेर आंसर्ड इनकरेक्टली। उसके बाद करेक्ट आंसर, रिस्पोंडेंट कैन सी करेक्ट आंसर आफ्टर द ग्रेड आर रिलीज। पॉइंट वैल्यूज, रिस्पोंडेंट कैन सी द टोटल एंड पॉइंट रिसीव्ड फॉर ईच क्वेश्चन, उसे कितने मार्क्स मिले वो उसे पता होने चाहिए। ओके, उसके बाद हम जाते हैं रिस्पॉन्सेस में। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि रिस्पॉन्सेस में क्या करना है। रिस्पॉन्सेस में यहाँ पे ऑप्शन है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें उनके ईमेल के ऊपर फॉर्म भेजना है, दैट्स व्हाई वी हैव टू कलेक्ट द ईमेल एड्रेसेस। आफ्टर दैट अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग एंड लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। तो लिमिट टू वन रिस्पॉन्स जो मैंने इसके पहले ही बताया आपको, ये बहुत जरूरी है, इसे ऑन करना बहुत जरूरी है। इसे हम ऑन कर देते हैं। आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन में उसका व्यू किस तरह होना चाहिए, फॉर्म का प्रोग्रेस बार दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, शफल क्वेश्चन ऑर्डर नहीं, शफल क्वेश्चन ऑर्डर हमें नहीं करना है क्विज में। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमें क्वेश्चन शफल नहीं करने हैं। क्वेश्चंस अगर हमने शफल किए तो ये बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस है, जैसे मैंने स्टूडेंट का नाम लिखा, उसके बाद उसका सीट नंबर मांगा या रोल नंबर मांगा, तो गूगल क्या कंसिडर करता है कि उसे भी वो क्वेश्चन समझ लेगा, नेम और उसके रोल नंबर या सीट नंबर को भी क्वेश्चन समझ लेगा। और क्वेश्चन समझने के बाद वो क्या करेगा कि हमने जो स्टार्टिंग में नेम और सीट नंबर कॉलेज नेम लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, उसे भी शफल कर देगा और वो लास्ट में या मिडल में कहीं भी चले जा सकते हैं।
तो दैट्स वाई शफल क्वेश्चन ऑर्डर नहीं करना है, अदरवाइज हमारे जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 जो भी चालू होगा वो पहले कहाँ से शुरू हो गया वो क्वेश्चन, पहले हमने नाम पूछना है, नेम, कॉलेज नेम और इंस्टीट्यूट नेम, आफ्टर दैट द रोल नंबर और पर्टिकुलर मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये होने के बाद हमारे क्वेश्चंस चालू होंगे, लेकिन गूगल क्या कंसिडर करेगा कि सभी क्वेश्चंस है तो उसे वो शफल कर सकता है। सो दैट्स व्हाई दिस शफल क्वेश्चन ऑर्डर इज नॉट मींस उसे ऑन नहीं करना है हमें। ओके, उसके बाद कंफर्मेशन मैसेज, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, या हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि यू गेट द प्रिंटेबल सर्टिफिकेट आफ्टर सम टाइम और आफ्टर 1 डे। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस कंफर्मेशन मैसेज, उसने फॉर्म सबमिट करने के बाद उसे ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। ओके, उसके बाद शो लिंक टू सबमिट 1 रिस्पॉन्स, तो ठीक है हमने कर दिया उसे। फिर व्यू रिजल्ट, तो रिजल्ट तो देखने ही देखने हमें, तो उसके बाद तो दीज आर द मीन्स ऑप्शन। अभी हम जाते हैं, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पे क्विज जो ऑप्शन है उसे ऑन कर दिया है, इस फॉर्म को हमने क्विज बना लिया है। ओके, अभी क्विज बनाने के बाद हम इसमें अभी क्वेश्चंस डालना चालू कर दें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम। ओके, अभी नेम लिखने के बाद लुक एट दिस इज द शॉर्ट आंसर, और ये रिक्वायर है तो यहाँ पे हम रिक्वायर ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। ओके, उसके बाद हमें सर्टिफिकेट में नेम चाहिए, तो ठीक है नेम आ गया। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम कि हम क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कुछ भी लिखेंगे हम आपके लिए इजी हो करके। ओके, the screen that recognize input, recognize touch input is, तो अभी हम यहाँ पे मल्टीपल चॉइस इसको ऑन कर देते हैं। ओके, तो मल्टीपल चॉइस कर दिए। और एक और बात की, ये हमें, मैं सिर्फ आपको डेमो दे रहा हूँ, तो आप यहाँ, मैंने यहाँ नेम लिखा है तो आप यहाँ पे नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स और सीट नंबर, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, आप जो भी मांगते हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। आप इसके नीचे 2-3 क्वेश्चन लिख सकते हैं जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, नेम, इंस्टीट्यूट नेम, आफ्टर दैट फिर ये क्वेश्चन पे आ गए, नेम द स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइज touch input is called, while option exam screen, second option with a point screen, third option with a touch screen, fourth option with the, sorry, touch screen, also with a point screen, and another option is Android screen. ओके, अभी हम यहाँ पे जो नीचे दिया है आंसर की, इस आंसर की को हमें क्लिक करना है, क्योंकि हमें राइट आंसर देना है कि राइट आंसर इनमें से कौन सा है, और हमें पॉइंट्स भी देने हैं। तो ओके, तो यहाँ पे मैं राइट आंसर की के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। आंसर की के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इसे 2 मार्क्स दे देता हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट्स, और जो राइट आंसर है उसे भी मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो आपको पता चल जाएगा अभी राइट आंसर क्या है। उसके बाद डन, इतना होने के बाद यहाँ पे ये जो डन ऑप्शन है इसे क्लिक करना है, तो हमने यहाँ पे इसे डन कर दिया। ओके, और इसे रिक्वायर कर दिया। ओके, तो रिक्वायर नहीं भी किया तो चलेगा, लेकिन हम कर देते हैं कि स्टूडेंट ने या पार्टिसिपेंट हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
located? Where is Taj Mahal located? कोई क्वेश्चन लेते हैं. ओके, दिल्ली, जयपुर, नागपुर. ओके, अगेन यहाँ पे आते हैं आंसर की. आंसर की में आने के बाद राइट आंसर को हमें ग्रीन करना है और उसके बाद यहाँ पे उसे पॉइंट्स देने, तो 2 पॉइंट. ओके, डन. चलो एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, सिंपल. What is full form of ICT? चलो ICT का फुल फॉर्म पूछते हैं हम. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बाद ट्रेंड के बाद देते हैं trends and finally none of these. Okay, तो इसे भी देख लेते हैं. फिर इसमें भी आंसर की का क्या ऑप्शन है, या आंसर की के ऊपर क्लिक करेंगे, आंसर की के ऊपर राइट आंसर. आफ्टर दैट देयर इज अगेन 2 मार्क्स. आपको 10 देना है. 10 जो मार्क्स जितने मार्क्स दे सकते देखिए, और देयर इज रिक्वायर करके साइन कर दिया हमने. ओके, तो इतने क्वेश्चन. ओके, ठीक है. फॉर द क्विज कॉन्टेस्ट जितने ऐड करने कर सकते हैं. दिस इज ओनली अ डेमो फॉर्म. तो ओके, तो इसे हमें सेव करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है. और हमने 3 क्वेश्चंस को, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो देयरफॉर टोटल यहाँ पे 6 मार्क्स है. ये देखिए यहाँ पे टोटल पॉइंट जो ऊपर जो हमने दिए हैं, कि अगर हमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सेट करना है या 40 मार्क्स का करना है, तो हमें यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है कि हमारे क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं जा रहे हैं या तो फिर कम तो नहीं हुए हैं. तो ये विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट कि हमने कितने मार्क्स दिए हैं करके. ओके, सो नाउ सर एक क्वेरी है. हाँ हाँ सर जैसे आपने अभी यहाँ पर क्वेश्चंस टाइप किया है. हाँ मैम. हेलो. हाँ मैम. हाँ, तो जैसे अगर हमारे पास अगर कुछ क्वेश्चंस टाइप किए हुए हैं, इफ वी वांट टू कॉपी पेस्ट इट एंड ऑप्शंस आल्सो, इट हाँ. डजंट वर्क सर. मैम मैं आपको सिंपल ऑप्शन बताता हूँ. हाँ. कि आपके जो क्वेश्चंस है, आपने वर्ड फाइल में अगर टाइप करके रखे उसे, यस सर. हाँ. तो वो क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस और जो ऑप्शंस है उसे, मींस क्वेश्चन को तो आपको कॉपी पेस्ट करना ही पड़ेगा. हाँ. लेकिन जो ऑप्शंस है, हाँ. वो ऑप्शंस को आप 1 बाय मींस वर्टिकली अरेंज कीजिए, हॉरिजॉन्टली नहीं. यस सर, वर्टिकली अरेंज किया और उसको वर्टिकली 1 बाय 1 कॉपी पेस्ट करते गए. नहीं 1 बाय 1 नहीं करना मैडम. अच्छा. आपने डायरेक्टली वर्टिकली, अगर 4 आपके ऑप्शन है, चारों को वर्टिकली अरेंज किया, डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए. यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे. अच्छा. हाँ, यानी आपको 1 बाय 1 उसे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ओके. 1 मिनट मैडम. लेकिन अभी इसके मीन्स मैं देखिए कि जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी, ये क्वेश्चन आपके वर्ड फाइल में लिखा हुआ है. इसे तो आपको यहाँ पे लिखना ही है, यहाँ पे पेस्ट करना है. लेकिन आपको ये 1 2 3 4 बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है. आपने अगर ये चारों अगर ऐसे वर्टिकल अरेंज है आपके ऑप्शन, तो आपने चारों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है. वो ऑटोमेटिक 1 2 3 पर नंबर पे आ जाएंगे मैडम. अच्छा. हाँ, तो इससे हमारा उतना टाइम बच जाता है. सर एक क्वेश्चन. सर उस तरह एक बार आप कॉपी पेस्ट करके दिखाएंगे सर? हाँ, मुझे दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ ये सिस्को वेबएक्स जो है, इसमें फिर से स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा. 1 मिनट में बताता हूँ आपको. ओके, कॉपी पेस्ट हुआ था सर उस समय, लेकिन वो शेयर नहीं हो रहा था गूगल फॉर्म भी.
शेयर मीन्स? जैसे कि गूगल फॉर्म जो बच्चों को हम दे रहे थे हाँ हाँ क्विज, एज अ क्विज करके, हाँ मैम। तो वो शेयर नहीं हुआ था ठीक से। नहीं हो जाता है तो मैम, 1 कॉपी मिनट पेस्ट तो जो फॉर्म उन्होंने यही कहा था कि फॉर्म इज नॉट प्रॉपर मन, ऐसा कुछ तो भी मैसेज आता है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, बट प्रॉब्लम आया था मुझे उसमें। नाही मॅडम, कॉपी 1 मिनिट पेस्ट में आपको केल्याने पण होऊन जातं. आता मी तुमची अटेंडन्स शीट बनवली है ना, तो जो अपनी हाँ लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट 20 हाँ पार्टिसिपेंट्स की, मैंने 20 को एट अ टाइम सिलेक्ट किया और हाँ ऑप्शन 1 में राइट क्लिक करके पेस्ट किया, तो वो ओके, ऑटोमेटिकली 21 के नीचे एक आ जाते हैं. आई विल ट्राई फॉर दिस। यस यस, यू कैन ट्राई. ओके ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ सर, प्लीज प्रोसीड. हाँ। अच्छा, ये करके नहीं दिखाना फिर अभी मैं? नहीं सर, अभी वो आ दिखाइए। जाएगा. अच्छा यू ठीक कैन मूव अहेड. सर ओके। हम फ्रैक्शनल मार्क्स ले सकते हैं क्या सर? 2.5 3.5 मार्क्स डाल सकते हैं क्या इसमें? 0.5 3.5 ईच तो क्वेश्चन ऑप्शन सर फ्रैक्शनल में। देख लेते हैं, अभी हम ट्राई करके, अगर है तो ऑप्शन उस तरह का। ठीक है। ओके, वी कैन ऐड। ओके सर, ओके सर, वो अपने 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 आप वो ले लेता है, लेकिन हमने ओके से ओके। कादिर सर, आपसे ही हमने अभी नई चीज सीखे हैं। नहीं सर, ऐसे ही ट्राई कुछ मार्क्स। ओके ओके, इन दिस वे ये फॉर्म बन चुका है। अभी ये फॉर्म बनने के बाद हमें इसे अभी सर्टिफाई एंड से सर्टिफिकेट किस तरह अटैच है वो देखेंगे। जैसे क्विज कॉन्टेस्ट और क्विज कॉन्टेस्ट में हमें अगर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने हैं या फीडबैक फॉर्म के थ्रू अगर हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने हैं तो हम किस तरह कर सकते हैं वो देखेंगे। लेकिन उसके पहले इस फॉर्म को हमें डिजाइन करना है या कस्टमाइज थीम जैसे बोलते हैं, इसे चेंज करना है। तो फॉर एग्जांपल दिस आर द चूज थीम, 1 मिनट, ये ऑप्शन है यहाँ पे कस्टमाइज थीम करके। ये ऑप्शन मैं बाद में बताऊंगा आपको ये क्या है करके, पजल सिंबल। ये ऑप्शन है कस्टमाइज थीम, तो हम यहाँ पे गए। यहाँ पे जाने के बाद हम उस फॉर्म का कलर चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, इस रेड के ऊपर क्लिक किया तो द फॉर्म इज रेड बैकग्राउंड। फिर यहाँ पे ब्लू, सो दिस इज ब्लू, इंडिगो, then this is blue again, then light blue. So with the help of this we can change the color. Now यहाँ पे देखिए चूज इमेज फॉर द हेडर। अभी यहाँ पे हेडर दिख नहीं रहा है लेकिन हम हेडर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है चूज इमेज, तो हम यहाँ पे जस्ट क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इतने ऑप्शन है हमारे तरफ। इन ऑप्शंस में से हम जो भी ऑप्शन हमें अच्छा लगता है वो ट्राई कर सकते हैं हम। तो फॉर एग्जांपल दिस, हम यहाँ पे जाते हैं, इसे सिलेक्ट करने के बाद देयर इज ऑप्शन दैट इज इंसर्ट टैब। इस इंसर्ट टैब में हम जाते हैं और इंसर्ट टैब में जाने के बाद जैसे हम इंसर्ट टैब को प्रेस करते हैं, आफ्टर प्रेसिंग दिस, ये देखिए हेडर चेंज हो चुका है। अभी ये हेडर जो है, ये हेडर ऑलरेडी मीन्स गूगल ने प्रोवाइड किया है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरे कॉलेज की फीस है या मेरे कॉलेज का हेड, लेटर हेड के ऊपर जो सिंबल है वो यहाँ आना चाहिए, तो वो भी आ जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे इमेज अपलोड में जाएंगे हम। इमेज अपलोड में जाने के बाद देयर इज ऑप्शन दैट इज अपलोड ऑप्शन, और अपलोड ऑप्शन में यहाँ पे देखिए ब्राउज। ओके, तो ब्राउज में जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ब्राउज, और ब्राउज में जाने के बाद हमारे कॉलेज की या हमारे डिपार्टमेंट की जो इमेज है, जो लेटर हेड पे जो जिस तरह की इमेज आपको चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं। इतने सारे ऑप्शंस में से जो हमें चाहिए हम वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट अ मिनट, ये देखिए मेरा कॉलेज लेटर हेड मैंने किया है यहाँ पे, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये देखिए ये आ गए यहाँ पे, और हम वो प्रॉपर आया या नहीं आया उसे भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे कि पूरा फिट नहीं हो रहा है तो इसे ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ। डन करने के बाद ये देखिए अभी है द नेम ऑफ माय कॉलेज और द लेटर हेड, ये आ गया। यानी क्या हो गया कि ये पता हो गया कि भाई यहाँ से, यानी सिंबल इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फॉर्म मैंने बनाया है ये मेरे कॉलेज का फॉर्म है। और ये इस तरह अच्छा भी दिखता है कि हमारे कॉलेज का सिंबल आता है,
नाम आता है तो फॉर्म भी अच्छा दिखता है। ओके, तो नाउ इसे चेंज करता हूँ अभी। तो ले लेता हूँ दोबारा। ओके, ओके, तो ये थीम ऑप्शन हो गया। अब ये थीम ऑप्शन में एक और रह गया कि ये बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल, तो जो हमने क्वेश्चन पूछे उसकी फॉन्ट की स्टाइल यहाँ पे 3 या 4 ऑप्शंस है, दैट इज द फॉर्मल, प्लेफुल, बेसिक। तो ये अगर करते हैं तो लुक एट दिस चेंज स्टाइल, बेसिक ही ठीक है। ओके, नाउ इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद ये जो फॉर्म हमने बनाया है ये किस तरह दिख रहा है वो भी हमें देखना है, इसका प्रीव्यू। सो दिस इज द ऑप्शन ऑफ प्रीव्यू। तो ये प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद लुक एट दिस, जब हम स्टूडेंट्स को या पार्टिसिपेंट्स को जो फॉर्म भेजेंगे तो फॉर्म किस तरह दिखेगा, तो ये फॉर्म इस तरह दिखेगा। लुक एट दिस, email, name, institute name, and name of the, I mean these are the questions. तो ये फॉर्म हमारा इस तरह दिखेगा और फाइनली द सबमिट बटन। ओके, सो इन दिस वे ये फॉर्म हमारा इस तरह दिखेगा। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ अभी, और हमने जो फॉर्म बनाया है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं अभी। अभी जो क्वेश्चन हमने पूछे हैं और ये जो फॉर्म डिजाइन हमने किया है, ये फॉर्म डिजाइन करने के बाद हमें यहाँ पे बहुत सारे गूगल एड-ऑन्स प्रोवाइड करता है, जो कि एड-ऑन्स मीन्स क्योंकि एड-ऑन्स जो होते हैं वो एड-ऑन्स हमें इस फॉर्म को डेकोरेशन किस तरह देना चाहिए या इंटरेक्टिव किस तरह करना चाहिए, या तो ये फॉर्म और कितना अच्छा और से कैसा दिखे, उसके लिए ये एड-ऑन्स होते हैं दैट प्रोवाइडेड बाय द गूगल। तो ये एड-ऑन्स कहाँ होते हैं और इन एड-ऑन की मदद से क्या क्या हमें फायदा हो सकता है, क्या क्या यूजेस है इसके, ये फॉर्म्स को किस तरह अच्छा बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने ये गूगल फॉर्म डिजाइन किया, अब ये गूगल फॉर्म बेसिकली हमने किन लोगों के लिए हमारा फोकस है, तो द फोकस इज ऑन अवर स्टूडेंट्स, कि भाई अगर हम वो एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम अगर दे रहे हैं तो एग्जाम वो प्रॉपर है या प्रॉपर तरीके से कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो सभी को पता है कि देयर इज ऑप्शन दैट इज द टाइमर ऑप्शन, कि विद द हेल्प ऑफ टाइमर हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन टाइमर ऑप्शन किस तरह है, तो हमें क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ देखा, मैं इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताता कि ये टाइमर ऑप्शन हो है क्या। लुक एट दिस, दिस इज द फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर करके ये एड ऑन है। दिस एड ऑन मीन्स व्हाट, कि फॉर्म बनाने के बाद जैसे हमने फॉर एग्जांपल मैं हर लेक्चर में यही एग्जांपल देता हूँ और धार्मिक मैडम को तो एग्जांपल याद हो गया होगा कि वी आर मेकिंग द केक, और केक के ऊपर जो चेरी जो हम डालते हैं, तो ये एड ऑन वही काम करता है कि दिस गिव्स द डेकोरेशन टू द फॉर्म। तो ये फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर क्या है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद दिस इज द सेटअप। और ये फॉर्म प्रेजेंटर और टाइमर का काम क्या है, तो ये फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर का काम ये है, दिस फॉर्म प्रेजेंटर एंड टाइमर गिव्स अस द फैसिलिटी टू गिव द टाइमिंग टू अ पर्टिकुलर फॉर्म। कौन सा टाइमिंग, कब ऑन होना चाहिए, कब ये बंद हो जाना चाहिए, इसकी लिंक कब ऑफ होनी चाहिए। ओके, तो ये ऑप्शंस वो देता है। अब ये देखिए यहाँ पे मैं, ये मेरा अकाउंट है, इसमें यहाँ पे इसने फॉर्म का नाम ले लिया, और इसके ऑप्शंस में आपको बताता हूँ पहले कि ये ऑप्शंस में क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर में देखिए सेट टाइम, कितने मिनट के लिए ये टेस्ट ऑन होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल 20 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, वो भी है। उसके बाद स्टूडेंट्स ने ब्रेक लेना चाहिए नहीं, यानी इनको 5 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दीज आर द ऑप्शंस फॉर द ब्रेकिंग ऑप्शन। उसके बाद अलर्ट, यानी ये अगर इसकी टाइम लिमिट खत्म हो रही है, सपोज ये 30 मिनट्स का या 20 मिनट, फॉर एग्जांपल 20 मिनट्स का फॉर्म है, तो 20 मिनट्स अगर इसकी लिमिट है, हमें एग्जाम सॉल्व करने के लिए हमने स्टूडेंट के दिए है कि भाई एक स्टूडेंट ने 20 मिनट्स में ये एग्जाम सॉल्व करनी चाहिए या ये फॉर्म को अटेम्प्ट करके सबमिट करना चाहिए। तो उसके लिए उसे अगर 28 मिनट्स या 18 मिनट्स अगर हो गए, तो हमें 1 मिनट के पहले उसे वार्निंग देनी है या 2 मिनट्स के पहले वार्निंग देनी है,
वो भी हम यहाँ दे सकते हैं. लुक एट दिस इज द अलर्ट बिफोर 1 minute, alert before 2 minutes, alert before 5 minutes, any alert. So we can give the alert to the students. जैसे वो एग्जाम हॉल में बैठा है और उसे हम बताते हैं कि दिस इज द लास्ट 5 minutes और लास्ट 4 minutes, आप अपना रोल नंबर सीट नंबर चेक कीजिए. ये जो हम इंस्ट्रक्शन उसे देते हैं, सो लाइक दैट द अलर्ट गिव्स अस द मीन्स उसे अलर्ट वो देगा कि भाई 2 मिनट या 3 मिनट बचे हैं. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग फॉर्म प्रेजेंटर. उसके बाद अगर वो क्लोजिंग टाइम के ऊपर अगर चला जाता है तो उसके बाद वहां पे उसे मैसेज आएगा, फॉर्म इज क्लोजिंग सून, सबमिट बिफोर टाइम आउट. यानी उसे वो मैसेज जाएगा, जैसे हम बोलते हैं कि लास्ट 5 मिनट भाई आप क्लोजिंग कीजिए, वाइंड अप कीजिए करके. उसके बाद अगर टाइम अप हो गया है, टाइम पूरा हो चुका है, उसके बाद उसे मैसेज आएगा टाइम आउट, बेटर लक नेक्स्ट टाइम. ओके, या तो ये मैंने लिखा हुआ है, आप दूसरा भी कोई मैसेज लिख सकते हैं. ओके, उसके बाद उसे ऑडियंस कंट्रोल करके है. अब ये ऑडियंस कंट्रोल क्या है? ऑडियंस कंट्रोल मीन्स कंट्रोल हु कैन लॉग इन एंड हाउ मेनी अटेंड, कितने बार उसने लॉग इन किया और कितने बार नहीं किया. उसके बाद कौन सी एक्शन कंट्रोल करनी है, उसका फोटो लेना है, उससे फुल स्क्रीन ही रखने को मजबूर करना है. उसने अगर फुल स्क्रीन नहीं रखा और वो दूसरे टैब में अगर जाता है तो वो भी उसे ट्रैक हो जाएगा. उसके बाद ट्रैक फोकस, उसका फोकस चेक करना है. उसके बाद मीडिया कंट्रोल. तो दीज आर द ऑप्शंस कि हम वो स्टूडेंट को ऐसा लगना चाहिए कि वो एग्जाम हॉल में बैठा हुआ है और एग्जाम हॉल की तरह ही वो पेपर देना चाहिए. अभी ये तो हो गया फॉर्म प्रेजेंटर प्लस. अभी ये फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर आपको या हमारे स्टूडेंट्स को पूरा एग्जाम के जैसा इन्वायरमेंट एज फार एज टाइमिंग इज कंसर्न वो देगा. लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर वो चिट कर रहा है या किसी और से बात कर रहा है या उसे और कोई बाजू से कुछ प्रॉम्प्टिंग कर रहा है, अगर वो हमें चेक करना है, या तो अगर उसने जैसे अभी मैंने बहुत सारे टैब ओपन करके रखे हैं, तो भाई मैंने ये पेपर ओपन किया है और पेपर क्वेश्चन पेपर ओपन किया, और क्वेश्चन पेपर ओपन होने के बाद बाजू में मैंने गूगल सर्च ऑन कर दिया है, गूगल का टैब ओपन कर दिया है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए. और वो आजू बाजू से किसी से बात ना करे, उसकी अगर वो इधर उधर देखता है तो वो भी हमें पता होना चाहिए. सो देर इज अनदर ऑप्शन. अब वो ऑप्शन का नाम है प्रॉक्टर. ये तो हो गया फॉर्म प्रेजेंटर. अब यहाँ पे हम जाते हैं. नाउ दिस इज द टाइमर प्लस प्रॉक्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज कंसर्न इन प्रॉपर वे. तो ये तो बहुत सारे कॉलेजेस ने भी इसे ट्राई किया है कि अगर प्रॉपर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करनी है तो इस एड ऑन का यूज करना बहुत जरूरी है. अब ये देखिए यहाँ पे मेन थिंग, यहाँ पे अनेबल टाइमर, आपको यहाँ टाइमिंग अनेबल करना है. प्रॉक्टर तो हमें अनेबल कर दिया हमने. अब प्रॉक्टर क्या है ये देखते हैं. और ये जो लिंक है, जिस तरह हमने इसे अनेबल कर दिया, इसकी एक पर्टिकुलर लिंक ओपन होती है, उसे बोलते हैं ऑटो प्रॉक्टर. उस ऑटो प्रॉक्टर को हमें क्लिक करना है, वो टेस्ट लिंक को कॉपी करना है. कॉपी करने के बाद हमारे स्टूडेंट्स के ग्रुप पे भेज देना है. लुक एट दिस इज द कॉपी लिंक. लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द टाइमर. टाइमर तो अभी तो मैंने बता दिया कि कौन से डेट को वो पेपर चालू होगा, कौन से टाइम को वो पेपर चालू होगा, कब वो खत्म होगा, कौन से टाइम को वो खत्म होगा. दीज आर ऑल कॉल्ड एज. ओके, आफ्टर दैट मैंने जो चीजें बताई कि भाई उस स्टूडेंट को हमें ट्रैक करना है, वो अगर कोई मीन्स मिस या तो कुछ मीन्स चीटिंग या चीट कर रहा है हमें, तो वो किस तरह होगा. तो लुक एट दिस, दिस इज द ट्रैकिंग. हम किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टैब स्विचिंग, यानी अगर वो दूसरे टैब में गूगल टैब ओपन करता है और कोई सर्च इंजन ओपन करता है, वो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ट्रैक द स्टूडेंट. आफ्टर दैट अगर वो कैमरा को ऑन ऑफ करता है या कैमरा से चला जाता है, लुक एट दिस, ट्रैक हाउ मेनी पीपल आर लुकिंग एट द टेस्ट ऑन द स्क्रीन. अगर एक से ज्यादा लोग उस स्क्रीन के ऊपर अगर देख रहे हैं या उस कैमरे में देख रहे हैं तो वो भी ट्रैक कर लेगा. आफ्टर दैट डिटेक्ट व्हेन द बैकग्राउंड नॉइज इज लाउड. अगर कोई बाजू से कुछ बताता है, उसे प्रॉम्प्ट करता है, तो वो भी वो डिटेक्ट कर लेगा. उसके बाद फोटो दैट रैंडम, टेक एंड स्टोर अ फ्यू रैंडम फोटोज थ्रू आउट द टेस्ट एंड यू कैन रिव्यू दिस फोटोज आफ्टर द टेस्ट इज कंप्लीटेड. यानी ये बहुत सारे फोटोज बीच बीच में लेता है कि जैसे स्टूडेंट्स अगर उसके बाजू में कोई बैठा है, अगर उसके तरफ देख रहा है या अगर वो आई मूवमेंट्स इधर उधर कर रहा है तो वो भी वो ट्रैक कर लेगा. ओके, तो और उसके फोटोज वो हमें भेजेगा. उसके बाद कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, कि हम उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि भाई आफ्टर द टेस्ट स्टूडेंट ने प्रॉपर टेस्ट दी नहीं दी, उसे वो रिकॉर्ड भेज सकते हैं और उसे वो अलर्ट देगा.
और यूजिंग ड्यूरिंग द टेस्ट के ड्यूरिंग में भी टेस्ट इन्फॉर्म द टेस्ट टेकर रियल टाइम इफ दे आर बीइंग डिसऑनेस्ट, अगर वो डिसऑनेस्ट अगर है या कुछ प्रॉपरली टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो उसे वो मैसेज भेजेगा। ओके, so these are called as a timer and proctor. This is the very important thing regarding online examination conducting proper way. अगर उसे 2 या 3 वार्निंग अगर चले जाते हैं उसके बाद भी अगर वो नहीं होता है तो उसकी जो मार्क्स है उस मार्क्स के ऊपर असर होता है। जो ये टाइमर प्लस प्रॉक्टर है वो ऑटोमेटिकली एक परसेंटेज देता है कि भाई ये कितने कितने परसेंट ऑनेस्ट है और कितने परसेंट डिसऑनेस्ट है, उस हिसाब से हम उसकी मार्किंग कर सकते हैं। ओके, तो ये एड ऑन्स होते क्या है, ये कहाँ से ऐड किए जाते हैं, कैसे आते हैं, ये अभी सबका क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जाते हैं, ये 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद लुक एट दिस, मेक अ कॉपी, मूव टू ट्रैश, गेट प्री फिलिंग, प्रिंट, ऐड कोलैबोरेटर एंड स्क्रिप्ट एंड एड ऑन। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में जो ऑप्शन है दिस इज कॉल्ड एज एड ऑन। अब मैं इस एड ऑन के ऊपर क्लिक करता हूँ। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस एड ऑन, just a minute, हाँ, तो लुक एट दिस इज गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस, यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एड ऑन्स दिख रही है, फॉर्म लिमिटर है, टाइमर फॉर गूगल फॉर्म, फॉर्म रेंजर, हाइपोथेसिस क्रिएट। सो दीज आर द लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर एड ऑन्स। यानी हम इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शंस आते हैं, और ये ऑप्शंस आने के बाद हम कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद सपोज मैं टाइमर, फॉर्म लिमिटर या तो टाइमर फॉर गूगल फॉर्म के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो एड ऑन्स मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हैं तो उसमें लिखा है, ये देखिए यहाँ लिखा है इंस्टॉल, तो ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। ये देखिए ये टाइमर इंस्टॉल, टाइमर फॉर गूगल फॉर्म्स। तो जिसे मैंने इंस्टॉल, सपोज मैं ये इंस्टॉल करना है तो मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये मेरे लिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन आया है, लेकिन आप अगर इसे क्लिक करते हैं तो आपके लिए इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है मेरे पास। तो दैट्स वाई ये यहाँ पे मुझे अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन देगा। ओके, तो दीज आर द एड ऑन्स। हम इस एड ऑन की मदद से हमारे फॉर्म को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं और उसका फायदा भी होगा। ओके, अभी आपने जो एड ऑन ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद वो कहाँ पे शो होगा, तो वो शो होगा ये पजल के सिंबल में। लुक एट दिस, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आ गया एड ऑन। ओके, तो एड ऑन्स लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए यहाँ पे कितने सारे एड ऑन्स मैंने ऐड करके रखे हैं। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस गूगल फॉर्म। एंड देखिए यहाँ पे एक सर्टिफाई एंड कंट्रोल एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, फॉर्म प्रेजेंटर, फॉर्म लिमिटर, हाइपोथेसिस क्रिएट, आइकॉन्स। तो लॉट ऑफ देयर इज अ मीन्स ऑप्शंस। तो इनमें से अभी मैं आपको 2 या, मैंने फॉर्म लिमिटर बता दिया, फॉर्म प्रेजेंटर बता दिया, अभी एक हाइपोथेसिस क्रिएट करके है, इससे मैं आपको बताता हूँ इसका यूज क्या है, इन एड ऑन्स का यूज क्या है। This is hypothesis create. Okay, look at this. This is insert edit map और मिनी एडिटर। तो भाई यहाँ पे हम जाते हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आफ्टर क्लिकिंग ऑन this hypertext create gives us the facility to write the symbol in your Google form, means sorry mathematical equations. Okay, तो mathematical equations फॉर्म करते हैं हम, एंड मैथमेटिकल इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद यहाँ पे देखिए किस तरह वो फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या स्टेप करनी है,
क्रिएट योर मैथ इन द हाइपोथेसिस क्रिएट मैथ में वहां लिखना है चूज क्रिएट यूआरएल टू क्रिएट यूआरएल लिंक टू द इमेज एंड दिस लिंक विल एक्सपायर इन 10 मिनट्स प्रेस कंट्रोल एंड कमांड टू कॉपी द क्रिएटेड लिंक एंड क्लिक ऑन द ऐड इमेज आइकॉन इन द फॉर्म और ऐड इमेज आइकॉन के ऊपर जाना है और हमें वो लिंक प्रेस करनी है। लिंक प्रेस करने के बाद वहां पे ऑप्शन आता है बाय यूआरएल करना है तो यूआरएल की मदद से हम उसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद वो आ जाएगा। अभी वो देखते हैं हम किस तरह उसे हम इक्वेशन लिखते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ tan tan प्लस cos इक्वल टू sin। ओके, तो ये इक्वेशन है। अगेन फॉर एग्जांपल समेशन स्क्वायर ये सिंबल लिख देते हैं हम वहाँ पे लिख देते y लिख देते हैं x। ठीक है, अभी ये इक्वेशन बन चुका है। फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई इक्वेशन बना लिया और बनाने के बाद हम क्या करते हैं अभी यहाँ पे क्रिएट अ लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। दिस क्रिएट अ लिंक, क्रिएट अ लिंक के ऊपर मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देयर इज अ लिंक। अब लिंक कॉपी हो चुकी है। कॉपी होने के बाद मैं क्या करता हूँ इसे मैं बंद कर देता हूँ। इसे बंद करने के बाद क्वेश्चन में किस तरह उसे ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है इमेज। लुक एट दिस, दिस इज इमेज। तो इस इमेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें किस तरह वहाँ पे इमेज ऐड करनी है, कैमरे से करनी है, अपलोड करना है बाय यूआरएल। तो बाय यूआरएल हमें ऐड करनी है। तो बाय यूआरएल की मदद से मैं यहाँ पे जो लिंक मैंने कॉपी की थी उस फॉर्मूले की वो लिंक मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, अब ये मैंने लिंक यहाँ पेस्ट कर दी है। पेस्ट करने के बाद देखिए जो इक्वेशन मैंने लिखा था वो इक्वेशन यहाँ आ चुका है। आफ्टर दैट देर इज ऑप्शन दैट इज इंसर्ट इमेज। अब मैं इस इंसर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, अब इस इंसर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आ चुका है। ओके, तो इस तरह हम मैथमेटिकल जो इक्वेशंस होते हैं वो हम लिख सकते हैं विद इन द गूगल फॉर्म। कि भाई जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो टीचर्स अगर है ज्वाइन हुए इस एफडीपी में तो उन्हें ये फायदेमंद होगा। नाउ द नेक्स्ट इज आइकॉन्स फॉर स्लाइड्स एंड डॉक्स। तो ये आइकॉन्स फॉर स्लाइड्स एंड डॉक्स तो मैं स्लाइड्स में बताऊंगा कि इसका यूज क्या होता है करके। और ओके, फिर हम सर हाँ यस मैम। हेलो सर। सर जैसे सी प्रोग्रामिंग में हम लोग कोड देते हैं और उसका आउटपुट पे फिर ऑप्शंस देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस फॉर्मूला सो कैन वी राइट द शॉर्ट प्रोग्राम्स ऑफ सी लैंग्वेज? या यू कैन उसमें ये जैसे फॉर्मूला इंसर्ट हुआ वैसा वो कोड इंसर्ट हो जाएगा सर पूरा? हाँ मीन्स उसके मैडम कोड अगर इंसर्ट होता है इफ देयर इज अ सिंबल ऑफ मीन्स वो क्लोज ब्रेसेस जो हाँ है हाँ 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 हाँ, हाँ इसीलिए पूछ रहे हाँ। तो अगर वो आ तो जाते हैं वो उसमें ऐसे वो हाँ एज इट इज एज फिर आ इट इज जाएगा आ मैडम जाएगा। प्रोग्राम। या आ ओके, जाएगा मैडम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस के जो टीचर्स है उन्हें भी फायदा हो जाएगा। हाँ हाँ ये मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ फिर। तो ये हमारे 3 या 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अभी हम सर्टिफाई एम जो एड ऑन है उसके ऊपर हम आते हैं। सर्टिफाई एम के ऊपर जाने के लिए हमें यहाँ एड ऑन के ऊपर क्लिक करना है। एड ऑन के ऊपर क्लिक करने के बाद लुक एट दिस, दिस इज सर्टिफाई एम। ओके, सर्टिफाई एम पे जाने के बाद अनेबल सर्टिफाई एम इन दिस क्विज और हमने इसे अनेबल कर दिया है। अनेबल करने के बाद यहाँ पे आ गया गेट स्टार्टेड। सर्टिफाई एम इज नाउ अनेबल फॉर यूजिंग दिस क्विज। गेट स्टार्टेड हम स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट करने के बाद अभी यहाँ पे सर्टिफिकेशन इज ऑफ, अभी सर्टिफिकेशन ऑफ है यानी सर्टिफिकेशन नहीं जाएंगे। तो इससे पहले सबसे पहले इसे ऑन करना है। तो दिस इज द टर्न ऑन ऑप्शन, तो यहाँ पे टर्न ऑन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गया है सर्टिफिकेशन इज ऑन। ये होने के बाद ये जो परसेंटिंग पासिंग क्राइटेरिया है, अगर 80% अगर स्टूडेंट का पार्टिसिपेंट्स को मिलते हैं तो ही उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया हमारे हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं 80% है या 10% रखना है या 0% रखना है 20% रखना है। तो नाउ मैं तो 0% रखना हूँ। उसके बाद ये जो टेम्पलेट है जो ऑलरेडी सर्टिफाई ने हमें प्रोवाइड किया है कि हमें कौन सा टेम्पलेट यूज करना है। तो लुक एट दिस, अभी मैं आपको टेम्पलेट बता देता हूँ कौन से टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे। दिस इज सिलेक्ट एग्जिस्टिंग, डिजाइन माय ओन, मैं अपना खुद का बना सकता हूँ। ओके, और यहाँ ये एलिगेंट है, एब्स्ट्रैक्ट, दिस आर द टेम्पलेट्स दैट ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द सर्टिफाई एम फॉर अस। ओके, के पहले ये थे, अभी ये है। और अगर हमें हमारा खुद का सर्टिफिकेट अगर डिजाइन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। लुक एट दिस, दिस इज अ ब्लैंक, डिजाइन माय ओन लिखा है और यहाँ पे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग है। तो इस सिलेक्ट एग्जिस्टिंग में मीन्स व्हाट कि हमने जो सर्टिफिकेट डिजाइन किया है इसमें हमारे कॉलेज का नाम आना चाहिए, जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स है या प्रिंसिपल सर है उनके साइन आनी चाहिए, सिग्नेचर्स आनी चाहिए। अगर इस तरह का सर्टिफिकेट अगर हमें डिजाइन करना है तो वो भी हम डिजाइन कर सकते हैं with the help of select existing. Select existing means what? First of all, we have to design the certificate, then add in the certify M. यानी certify M का काम क्या है कि certify M का काम ये है कि ऑलरेडी उसके बाद जो सर्टिफिकेट वो तो देगा ही देगा, लेकिन अगर हमने हमारे कुछ सर्टिफिकेट्स हमें अगर डिजाइन करने हैं और वो डिजाइन करने के बाद इसे अटैच अगर हम करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ आवर नेम, विद द हेल्प ऑफ सिग्नेचर्स वो सर्टिफिकेट जाते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सिंपल है कि ये सर्टिफिकेट लेता हूँ और इसे सेव चेंजेस कर लेते हैं हम। अभी फिलहाल में ये सर्टिफिकेट डिजाइन हो चुका है, मीन्स सिलेक्ट हो चुका है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट चेंज हो चुका है और जो सर्टिफिकेट है वो किस तरह दिखेगा वो भी है, ये देखिए यहाँ पे फुल नेम सब दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे फुल नेम मीन्स हमारा नाम आएगा, टाइटल आएगा। ओके, और ये जो और यहाँ पे डेट सब आ जाएगी। ओके, तो नाउ हमें क्या करना है, सर्टिफिकेट रिकॉर्ड्स, उसके बाद हमने पासिंग क्राइटेरिया रख लिया, पासिंग क्राइटेरिया के बाद हमने सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लिया। सर्टिफिकेट सिलेक्ट करने यहाँ पे देखिए 97 ईमेल्स रिमेनिंग, तो ये 97 ईमेल्स है। ये 97 ईमेल्स मीन्स क्या होते हैं कि हमारे इनबॉक्स में आने वाले और हमने सेंड किए ये दोनों ईमेल्स वो काउंट होते हैं। ऐसा नहीं कि 97 में 97 सर्टिफिकेट दिन भर में जाएंगे। अगर मुझे दिन भर में 10 ईमेल्स अगर आते हैं, वैसे इसका 100 का कोटा होता है, लेकिन अगर मुझे 10 ईमेल्स अगर आते हैं तो वो 100 में से 10 ऑलरेडी चले गए, यानी मैं उस दिन सिर्फ 90 मेल्स ही 90 सर्टिफिकेट ही भेज पाऊंगा। 97 ईमेल्स मीन्स 97 सर्टिफिकेट। ओके, अभी जैसे मैंने पहले बार सर्टिफिकेशन इज ऑन लिखा, अभी ये सर्टिफिकेशन ऑन किया तो सर्टिफिकेशन ऑन का मेल मुझे मेरे इनबॉक्स में आ जाएगा सर्टिफाई एम से कि भाई आपने सर्टिफाई एम को इस फॉर्म से कनेक्ट किया है, ये एक मेल चला गया। उसके बाद अगर मुझे और कोई दो तीन कंपनीज के ईमेल आते हैं या जो भी, टोटल दिन भर में अगर मुझे 10 मेल आते हैं तो वो 100 के कोटा से जाएंगे और 100 कोटा में से अगर 10 माइनस होते हैं तो मेरे पास 90 ईमेल्स बचेंगे। So we got the 90 certificates to send per day. Okay? ऐसा नहीं कि 100 है तो 100 ही जाएंगे। अगर उस दिन आपको बहुत सारे मैसेज, जैसे अगर उनमें से कुछ मैसेज सर हमको सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे मैसेज जो आते हैं वो भी उसमें काउंट हो जाते हैं, फिर से सर्टिफिकेट कम जाते हैं। ओके, अगर आपको कोई मेल सेंड कर रहा है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट मेल सेंड करते हैं कि वी डोंट गेट द सर्टिफिकेट, वी डोंट गेट द, ऐसे अगर मैसेज आते हैं तो वो मैसेज भी उसमें काउंट होंगे और वो आपका जो
दिन भर का कोटा जो होता है मेल का वो कम होते जाएगा। अगर आपको 20 मैसेज अगर सर्टिफिकेट नहीं है कि अगर आगे तो आपके ऑलरेडी 80 सर्टिफिकेट ही जाएंगे। ओके, अभी हम इसे ऑन करते हैं, ये ऑन हो चुका है, सर्टिफिकेशन इज ऑन। और अभी मैं ये लिंक आपको सेंड कर रहा हूँ। सेंड करने का आपने सर्टिफिकेट आपको मिले तो किस तरह मिले आप हमें बताना है। ओके, तो मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ। लुक एट दिस इज सेंड ऑप्शन। आई एम क्लिकिंग ऑन दिस सेंड ऑप्शन। So after clicking on this send option, there is a option that is mail and link option. तो मैं link option के ऊपर क्लिक करता हूँ। link option के ऊपर क्लिक करने के बाद copy, look at this, पहले तो ये shorten URL, इन्हें बहुत बड़ा URL है तो इसको shorten करते हैं, इसे shorten URL and copy। अब ये copy करने के बाद I am just put on this in the chat box। ये chat box में मैं सबके लिए paste कर रहा हूँ this option। और ये मीन्स लिंक पेस्ट करने के बाद आई एम सेंडिंग दिस लिंक टू एवरीवन। अभी सब ने ये लिंक को ओपन करना है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सर्टिफिकेट आया नहीं आया हमें बताना है। ओके, तो मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने आपको लिंक भेज दी है, आपने उसे उस फॉर्म को ओपन करना है, सबको सर्टिफिकेट किस तरह आते हैं वो मुझे बताना है। ओके, कुणाल सर, सर्टिफाय एम झाल्यानंतर आपण ब्रेक घ्यायचा का? हो मॅडम, थोडा ब्रेक करू। हो, 12:30 ते 1 त्यांचा लंच ब्रेक असतो, तर मग चालेल। आपण नेक्स्ट सेशन 1 वाजता सुरू करू. हो ठीक आहे, बस एवढं त्यांना सर्टिफिकेट आले का पाहून घेऊ। हो हो हो. ओके। मॅम कशावर येईल आहे लिंक? लिंक चॅट बॉक्स मध्ये दिली आहे सरांनी. थोड़ा फास्ट करिए। सैंपल के तौर पे 1-2 जनों को अगर आ गया होगा सर्टिफिकेट तो प्लीज सर को बताइए। हमने सबमिट किया है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आया। जी मैम आ गया। आ गया ना, ठीक है। सर आलाय कुणाल सर, सर्टिफिकेट आलेत का? हो हो. ओके ओके, चालेल। मग त्याचं म्हणजे काय काय लिहिलंय त्यामध्ये? जिनको सर्टिफिकेट मिला है बताइए किस टाइप का मिला है सर्टिफिकेट। This certificate declared that option 1, Mrs. Tanveen Ashrafi, GM Women's College, has completed ICT FDP 2022 इस तरीके से लिखा है on the date of 5/2022। Sir, received certificate। हाँ, ये इस तरह का दिख रहा है। रेवती बंगे मैडम, ओके ओके। तो इस तरह हम सर्टिफिकेट सेंड कर सकते हैं। और अगर हमारे कॉलेज का सर्टिफिकेट अगर हमें खुद डिजाइन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टिफाई एम। तो अगर किसी पार्टिसिपेंट को अगर सर्टिफिकेट किस तरह डिजाइन करना है ये अगर पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ आवर कॉलेज लोगो, कॉलेज सिंबल, कोऑर्डिनेटर सिग्नेचर, नेम, प्रिंसिपल सिग्नेचर, तो वो भी हम लेंगे। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो बोलिए, या तो फिर हम ब्रेक। हाँ सर, इसमें
बिल्कुल सर इसमें स्कोर भी डिस्प्ले हो रहा है कि कितना स्कोर आपको आया है सर्टिफिकेट में? हाँ मैम, हाँ। हाँ तो हाँ सर, हमें लगता है कि ये स्कोर नहीं आना चाहिए। अच्छा अच्छा, चलेगा ना, वो ऑप्शन हम हटा देते हैं। यहाँ जो मैं आपको पढ़ाऊंगा सर, अगर मीन्स जैसे हम हमारा खुद का कॉलेज का सर्टिफिकेट डिजाइन करते हैं ना, या कोई वर्कशॉप हाँ का, तो उसमें हम स्कोर हाँ नहीं आना चाहिए, वो भी ऑप्शन है, तो वो भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम, प्रीति मैम, हाँ सर, हाँ अभी हम ब्रेक लेते हैं, इसके बाद सर्टिफिकेट किस तरह बनाना है वो भी मैं पढ़ा दूंगा आपको। हो सर, हो चालेल. Yes. मतलब एक कोई तो भी ऍप्लिकेशन पूरा अगर उनको समजा देते हैं दे कॅन डू, म्हणजे खूप सारे घेण्यापेक्षा एक आपण कम्प्लीट करू पहिले आणि मग जर वेळ मिळाला तर मग तू अजून ऍडव्हान्स वाला पार्ट घेता येईल. ओके मॅम, Yes, ma'am. हाँ हाँ महत्वाचं आहे. येस येस येस. चला ठीक आहे. सर, ब्रेक घ्यायचा. हो हो मॅडम, तब Yes, तक yes, yes. Participant, please take your lunch. I am ending the meeting to save this session. कारण की काल मी मीटिंग एंड नव्हती केली तर 3 तासाचं सेशन रेकॉर्ड व्हायला आणि सेव्ह व्हायला खूप वेळ लागला होता. तर मी आता मीटिंग एंड करते, हे सेशन रेकॉर्डिंग सेव्ह करते आणि मी थोड्या वेळाने परत सुरू करते सेशन. ठीक आहे. वी विल मीट ॲट 1 o'clock. Okay, ma'am. ओके मॅम. 1 वाजता पटापट जॉईन करा, म्हणजे सरांजवळ खूप सारं आहे सांगण्यासारखं, तर आपलं जास्ती कव्हर होईल. Okay, madam. ओके मॅम. चला, चालेल. कुणाल सर एंड करते मीटिंग. हो हो मॅम, ओके. ओके ओके, थँक्यू सर.